Hello all. Welcome to a new session for Current Affairs of Prelims 2021 by IAS Network. So in this session, we'll be taking a quick look on the science and technologies topics which are there in news from the last 1.5 years. So in this particular session, I have taken few important topics from biotechnology, which is very important and emerging field, especially in the wake of COVID-19 pandemic. So looking at some important themes which were there in the news with respect to biotechnology and looking at what all concepts are there behind them. So let's start. So if you talk about the session on science and technology, the first thing we are taking is biotechnology. So if you talk about the basic things which we need to know and remember about biotechnology is that cell is the basic unit of life, and inside this cell there is presence of nucleus, and inside this nucleus there is presence of chromosomes. So there are roughly 23 pairs of chromosomes inside the nucleus, and these 23 pairs of chromosomes can further be divided into 22 pairs of chromosomes which are responsible for controlling other traits in human body, like controlling the eye of, like controlling the color of your hairs, like controlling the color of your eyes, etc. However, one pair is responsible for determining the sex characteristics or giving the sex characteristics to individual. ठीक है, and that particular chromosome is called as sex chromosome. Now if we talk about this further, chromosome is being divided into this double helical structure which we famously called as DNA. A DNA is a double helical structure which is having these base pairs of cytosine, guanine, adenine and thymine. ठीक है, so these are further being divided into DNA molecules, and these DNA molecules, a section of these DNA molecules is termed as a gene. So we have this hierarchy, that is cell. सेल के अंदर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि वी हैव क्रोमोसोम लाइक दिस, एंड दिस क्रोमोसोम के अंदर क्या है कि वी हैव डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डीएनए, एंड अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच इज़ हैविंग अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड इट इज़ कॉल्ड अ जीन. ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई. ऑल्सो वी नीड टू नो दैट cell combination, number of cell combines to form a tissue. ठीक है, and these tissue combine to form what, organs. ठीक है, and these organ combine to form what, organ systems. ठीक है, and then they lead to formation of an organism, in our case humans. ठीक है, so this is a basic fundamental knowledge you need to remember whenever you are tackling the topics from biotechnology. ठीक है, कि डीएनए कहाँ होता है, डीएनए इज़ फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि डीएनए इज़ ऑल्सो फाउंड इन द माइट्रोकॉन्ड्रियल एरिया ऑफ द सेल. तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी क्या है कि थोड़ा सा ट्रेस डीएनए इज़ प्रेजेंट माइट्रोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स. द फर्स्ट टॉपिक इज़ डीएनए profiling bill 2019. Now what is the purpose of this bill? The purpose of this bill is to regulate the use of DNA information. जो भी DNA information you will be taking from any suspect, crime victim, ठीक है, तो उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है, किस तरीके से उसका यूसेज होगा, किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड रहेगी, कहाँ पर उसकी मॉनिटरिंग ट्रैकिंग होगी, उसके लिए बिल लेके आया गया था टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल. दीज प्रोफाइल्स आर देन मेंट टू गाइड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है, अब होता क्या है कि दिस इज सिंपल फैक्ट बिहाइंड दिस इज कि डीएनए वी नो दैट इट इज़ अ यूनिक, इट शोज़ अ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स फॉर एवरी इंडिविजुअल. ठीक है, एंड देयरफॉर अगर डीएनए को हम किसी इंडिविजुअल से, किसी विक्टिम से, किसी क्राइम बट क्राइम रिलेटेड आदमी से, इवेंट से हम लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि उस डीएनए को किस तरीके से स्टोर करना है, दिस बिल पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट दैट आस्पेक्ट. ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स क्या हैं. अकॉर्डिंग दिस बिल हाईलाइट्स और दिस बिल स्टैब्लिशेस नेशनल एंड रीजनल डीएनए डेटा बैंक्स. ठीक है, तो इस बिल के अंदर क्या बात कही है कि देयर इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी, लाइक जोन्स के अंदर बांट दिया, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन्स, ईस्ट जोन, साउथ जोन. तो नेशनल एंड रीजनल लेवल पे भी क्या है कि डीएनए डेटा बैंक्स बनाए जाएंगे. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है अकॉर्डिंग टू इन दिस बिल इज़ कि रिटन कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड. आपको आदमी के डीएनए सैंपल्स लेने हैं, ठीक है, या फिर डीएनए सैंपल्स को आप
को लेना है तो देन देर इज़ अ रिटन कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑफ whom यू वांट टू टेक द डेटा, दैट रिटन कंसेंट उसका चाहिए होगा। मगर बट देर इज़ एन एक्सेप्शन टू इट। एक्सेप्शन क्या है कि अगर मान लो उस पर्टिकुलर आदमी ने ऐसा ऑफेंस किया है, उस पर्टिकुलर आदमी ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट मोर देन 7 ईयर्स है और ऑफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी के नियरिंग है, तो उसके केस में देर इज़ नो नीड फॉर रिटन कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो रिटन कंसेंट रिक्वायर्ड होगा। बट अगर ऐसे ऑफेंसेज जिसमें क्या है कि देर इज़ पनिशमेंट ऑफ मोर देन 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी, तब वहाँ पर देर इज़ नो नीड ऑफ रिटन कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, एट द सेम टाइम हमें और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है इसके बारे में, ये एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये एक बिल है अभी, इट इज़ नॉट एन एक्ट। ठीक है, तो यूजुअली बिल्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल क्वेश्चन आ सकता है कि कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द डीएनए प्रोफाइलिंग बिल 2019। तो ये दो इंपॉर्टेंट इसके प्रोविजंस हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट, इससे होगा क्या, इन्वेस्टिगेशंस के कैसे हेल्प करेगा, बिकॉज इट विल हेल्प अस बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स में कैसे हेल्प करेगा? क्रिमिनल मैटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? रेप हो सकता है, ठीक है, देन मर्डर चार्जेस, बिकॉज डीएनए के अंदर क्या होती है, यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑफ विच इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड यूनिक टू अ पर्टिकुलर पर्सन, विक्टिम और द क्राइम सस्पेक्ट। ठीक है, सिविल केसेस के अंदर कैसे केसेस हो गए, लाइक पेरेंटेज डिस्प्यूट्स। पेरेंटेज डिस्प्यूट्स, अब पेरेंटेज डिस्प्यूट्स क्या है कि ये बेटा किसका है, ठीक है, हु वॉज द फादर ऑफ दिस चाइल्ड, तो उसके अंदर क्या है कि ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, तो जुडिशरी के अंदर इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है, आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द ईयर 2016 हु स्टार्टेड, ठीक है, द आस्पेक्ट ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक, डीएनए प्रोफाइलिंग स्टार्ट करी थी आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले। इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ दिस डीएनए प्रोफाइलिंग, अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, अब डीएनए प्रोफाइलिंग का क्या है कि एक और टर्म से बुला सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, इस कंसेप्ट से ही बुला सकते हैं इसको। ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डीएनए प्रोफाइलिंग आर वन ऑफ द सेम थिंग। अब होता क्या है, हमने देखा ये सेल था, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम था, उस क्रोमोसोम के अंदर क्या था हमारे पास, डीएनए। अब डीएनए क्या होता है ना कि दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बेस पेयर्स विच आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर। ठीक है, बट क्या होता है कि इट हैज़ बीन सीन कि जो अंडर डीएनए है अराउंड 99.9% ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, जो डीएनए सीक्वेंस है इसका 99.9% जो डीएनए सीक्वेंस है, दिस इज़ ऑलमोस्ट सेम, दिस इज़ ऑलमोस्ट सेम इन ऑल इंडिविजुअल्स। ठीक है, however there is a difference or uniqueness of 0.1% of DNA। however जो DNA का एक 0.1% जो हिस्सा होता है विच इज़ यूनिक, दिस पर्टिकुलर 0.1% इज़ यूनिक इन एवरी इंडिविजुअल, ये यूनिक होता है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये हाईली रिपीटेटिव होता है। क्या होता है, हाईली रिपीटेटिव होता है। हाईली रिपीटेटिव का मतलब क्या है कि इट कंटिन्यूज टू रिपीट इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस डीएनए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, फिर यहाँ पर रिपीट हो गया थोड़े टाइम के लिए, फिर यहाँ पर रिपीट हो गया थोड़े टाइम के लिए, और फिर यहाँ पर रिपीट हो गया। तो ये जो छोटे छोटे सीक्वेंसेस हैं विच फॉर्म 0.1% ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, 0.1% ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, दीज आर हाईली रिपीटेटिव। ऑल्सो दीज आर नॉन कोडिंग। क्या होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं। नॉन कोडिंग का मतलब दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रोसेसिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोटीन, मतलब दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोटीन, उनसे कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, उनका कोई काम ही नहीं प्रोटीन फॉर्मेशन में। ठीक है, इन पर्टिकुलर इस 0.1% को डीएनए सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, क्या बोला जाता है, सैटेलाइट डीएनए। अब क्योंकि सैटेलाइट डीएनए यूनिक है, ठीक है, टू एवरी इंडिविजुअल के लिए यूनिक है, ये सारे जो भी हमारे पास ये
पॉकेट्स मिल रही हैं, ये वाली ये वाली ये वाली, ये सब किस में आ रहे हैं, सेटेलाइट डीएनए के अंदर। और डीएनए प्रोफाइलिंग के अंदर ये सेटेलाइट डीएनए का जो पोर्शन है, जैसे ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, इज़ यूज्ड फॉर गेटिंग द डीएनए फिंगरप्रिंट्स ऑफ एनी पर्सन। अब होता क्या है कि हम सेटेलाइट डीएनए उतार लेंगे जो कि यूनिक है। सेटेलाइट डीएनए को क्या करेंगे हम, विल पास थ्रू पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ठीक है, जो कि आरटीपीसीआर के अंदर भी क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो हम यहाँ पे सेटेलाइट डीएनए को क्या करते हैं, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के थ्रू हम इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम इसको, आफ्टर दैट व्हाट वी डू इज़ वी एक्चुअली पास इट थ्रू एन इलेक्ट्रोड, ठीक है, और उसके बाद एक कॉम्बिनेशन मिलता है हमें, और उस कॉम्बिनेशन के बाद हम उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को, जो भी वहाँ पर ब्लड सैंपल मिला है या फिर जो भी वहाँ पर सीमन सैंपल मिला है ऑफ दैट पर्टिकुलर कन्विक्ट, उसके सैंपल से हम मैच करवा लेंगे। अगर सेम आता है सैंपल, ठीक है, देन इट इज़ कन्फर्म दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन जो कि उसमें कन्विक्ट हुआ था इज़ द एक्चुअल कल्प्रिट, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो होता क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग में क्या यूज़ आता है, यूज़ क्या आता है, सेटेलाइट डीएनए, ठीक है। सेटेलाइट डीएनए आता है जो कि एक 0.01% डीएनए सीक्वेंस का पार्ट होता है, ठीक है, विच इज़ यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल, विच इज़ हाईली रेपिटेटिव एंड विच इज़ नॉन कोडिंग, दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ एनी प्रोटीन, ठीक है। तो ये डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई। तो हम सेटेलाइट डीएनए निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करवाते हैं, उसके बाद उसको इलेक्ट्रोड में भेज के एक पैटर्न बना लेते हैं। अब ये पैटर्न अगर दूसरे सैंपल्स जो हैं जो वहाँ पर क्राइम सीन पे मिले थे, अगर उससे मैच हो जाएंगे तो जिस आदमी के सैंपल थे वो आदमी क्या हो जाएगा, कन्विक्ट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात ये हो गई ख़त्म। अब सेकंड चीज़ जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि रेपिटेटिव डीएनए और सेटेलाइट डीएनए, ठीक है, दो टाइप के डीएनए होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रिपीटेड डीएनए क्या है कि रेफर्स टू सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए इन विच स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, उसे रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। सेटेलाइट डीएनए रेफर्स टू दोज रिपीटेटिव, ये भी होता क्या है, पार्ट होता है रिपीटेड डीएनए का विच डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, मतलब उससे कोई प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन नहीं होता है, एंड फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ जिनोम, ह्यूमन जिनोम का भी एक अच्छा खासा पार्ट बनाते हैं ये। रिपीटेड डीएनए इसका कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। सेटेलाइट डीएनए इसका क्या है कि फर्दर क्लासिफिकेशन एज माइक्रो एंड मिनी सेटेलाइट्स, ठीक है, जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है, हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना है। रिपीटेटिव डीएनए डज नॉट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये शो नहीं करते हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, हम सेटेलाइट डीएनए क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ देयर सेटेलाइट डीएनए, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि शोइंग हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, दिस इज शोइंग हाई डिग्री ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक छुपी हुई है, पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक छुपी हुई है किसमें, सेटेलाइट डीएनए के अंदर, ठीक है। इट इज़ यूनिक टू एवरी, इट इज़ यूनिक टू एवरी individual on earth, it is unique to every individual on earth from same species, from same species का मतलब क्या है, अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो ह्यूमंस एक स्पीसीज़ हो गया, ह्यूमन स्पीसीज़ हो गया एक। अब ह्यूमन स्पीसीज़ के अंदर मान लो ये ह्यूमन 1 है, ये ह्यूमन 2 है, ये ह्यूमन 3 है, ये ह्यूमन 4 है, ऐसे करते करते मैं ह्यूमन n तक जाता हूँ। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है कि इन एवरी ह्यूमन, ठीक है, एवरी ह्यूमन विल हैव अ यूनिक सेट ऑफ दिस सेटेलाइट डीएनए और यूनिक सीक्वेंस ऑफ सेटेलाइट डीएनए, ठीक है, एंड देयरफॉर दिस particular characteristics which is showing a uniqueness in the DNA sequence which is helping us in DNA profiling, DNA fingerprinting with the help of satellite DNA is helpful us to show that particular things exist about certain aspects, ठीक है। तो ये होता है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ताकि आपको वेरिएशंस दिख रहे हैं किसमें, लोगों के ट्रेट्स के अंदर, ठीक है। जैसे 99.9% जो डीएनए सीक्वेंस है वो तो क्या है कि रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा, मगर 0.1% करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट इज़ हेल्पिंग अस इन गेटिंग द अदर आस्पेक्ट्स विच इज़ डिफ्रेंशिएटिंग अस फ्रॉम द अदर पर्सन, ठीक है। तो वो हर का यूनिक होता है। अब ये यूनिक करेक्टरिस्टिक को हम किससे बताते हैं, दिस यूनिक करेक्टरिस्टिक्स इज़ been termed as DNA polymorphism, and this DNA polymorphism is been highly
present in satellite DNAs and therefore we are using satellite DNAs in DNA fingerprinting and DNA profiling. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, तो सब समझ में आ गया. अब बात आते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है. तो ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग को पढ़ने से पहले फर्स्ट ये देख लेते हैं जीनोम क्या होता है. तो अगर जीनोम की बात करूँ तो जीनोम इज़ सम टोटल और अ कंप्लीट सेट. ये तो सम टोटल बोल दो या फिर बोल दो कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए एलिमेंट्स. ठीक है, डीएनए एलिमेंट्स का कंप्लीट सेट या उनका सम टोटल को क्या बोलते हैं, जीनोम. और जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है उसको हम देखते हैं थोड़ी देर में. बट ये जीनोम जो है जिसे हम कंप्लीट सेट और सम टोटल ऑफ डीएनए एलिमेंट बोलते हैं, तो ये रफली अराउंड कितने होते हैं, 3.2 बिलियन डीएनए बेस पेयर फॉर ह्यूमंस. ठीक है, तो इतने क्या है कि सेट को क्या है कि वी आर सेइंग जीनोम, इसको पूरे को नाम दे दिया. और ये क्या होता है, एक ब्लू प्रिंट होता है, अ ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑर्गेनिज्म कैसा बनेगा, क्या होगा, क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसका क्या होता है, सारा लेखा जोखा होता है, दैट वी ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्रिंट. ठीक है, अब जब जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो व्हाट इज़ जीनोम सीक्वेंसिंग इज़, जीनोम सीक्वेंसिंग इज़ डिसाइफरिंग का मतलब पता लगाना, डिसाइफरिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेस पेयर्स इन एन इंडिविजुअल. ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम पता लग गया क्या था. अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है कि एग्जैक्ट ऑर्डर किसका, बेस पेयर का एग्जैक्ट ऑर्डर को पता लगाना. ठीक है, इस डीएनए सीक्वेंसिंग. अब हमें पता है कि जीनोम क्या है, सम टोटल ऑफ डीएनए एलिमेंट्स. अब डीएनए एलिमेंट्स के अंदर हमें पता है कि बेस पेयर होते हैं कौन कौन से, ए टी सी जी. ठीक है, तो अब इन ए टी सी जी का किस तरीके से हमारे पास ए टी सी जी सी ए सी जी टी ए सी जी, इसका ऑर्डर किस तरीके का है, इस ऑर्डर को क्या है कि पता लगाना, इसको बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग. अभी ऑर्डर क्या है कि हर में अलग होगा, देयरफॉर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अस टू डू जीनोम सीक्वेंसिंग फॉर बेटर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस या फिर प्रिसिजन मेडिसिन, कि ऐसी मेडिसिन बनाएं जो कि क्या है कि पर्टिकुलर जीनोम सीक्वेंस वाले आदमियों को या फिर ग्रुप्स को एकदम अच्छे से क्या है कि एक्ट करें. ठीक है, ये बात होगी कंप्लीट. अब इसके बाद हम देखते हैं कि हेल्प क्या होगा. जो भी हम डीएनए सीक्वेंसिंग करेंगे उस डीएनए सीक्वेंसिंग से हमारे पास क्या आएगा, एक डेटा आ जाएगा, एक डेटा सेट आ जाएगा. अब ये डेटा सेट क्या हेल्प करेगा, इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द फंक्शन ऑफ वेरियस जीन्स. ठीक है, कि हर जीन किस तरीके से एक्ट करते हैं. ठीक है, जो सारे जीन्स हम यहाँ पर सीक्वेंस करेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि G1 क्या एक्ट करता है, G2 कैसे एक्ट करता है, G3 कैसे एक्ट करता है, इनका सबका फंक्शन क्या है वो पता लग जाएगा. इट विल ऑल्सो हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग व्हाट, जेनेटिक म्यूटेशंस. ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई करने के अंदर काम आएंगे हमारे पास. अब हम जब बोल रहे हैं कि कोविड वायरस का जो क्या है कि म्यूटेशन आ गया है, तो हमें पता कैसे लगा, बिकॉज जो हमने कोविड 1, ठीक है, जो कोविड मार्च के अंदर आया था, ठीक है, मार्च वाला, उसकी हमने जीनोम सीक्वेंसिंग करी थी, तो हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न आ रहा होगा 1 2 1 2 1 3 4. पर हमने जो अभी कोविड-19 जो अप्रैल में चेक किया है, ठीक है, ऑफ 2021, ठीक है, जिसको हम यूके वेरिएंट बोल रहे हैं या फिर ब्राज़ीलियन वेरिएंट बोल रहे हैं, तो वहाँ पर हमने जब जीनोम सीक्वेंसिंग करी तो उसमें क्या आ रहा था, 1 2 1 2 1 3 4 और उसमें 1 6 7 6 ऐसा कुछ आ रहा है पैटर्न. तो हमें क्या पता लग गया कि ये वायरस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैज़ बीन म्यूटेटेड. और ऐसा म्यूटेशन कहाँ पर दिखा था, ब्राज़ील में दिखा था, तो हमने उसको क्या बोल दिया, ब्राज़ीलियन म्यूटेटेड वायरस. ऐसा और कोई और होगा तो यूके में मिला होगा तो हम उसको वहाँ यूके वाला नाम दे देंगे. तो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर. ठीक है, अब बात करते हैं हम जीनोम सीक्वेंसिंग की एक ब्रीफ टाइमलाइन देख लेते हैं हम. तो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें तो देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच स्टार्टेड 1990s. दिस वाज कॉल्ड एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड. दैट इज़ मोस्टली हमें क्या है कि सारा जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रोसेस को हमें क्या है कि इसमें कंप्लीट करना था. हमें उसके जो भी जीनोम्स का हमने एक डेटा सेट बनाना है, उसका हमने सारा जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट करना था. इसको स्टार्ट किसने किया था, तो दैट वाज मीनिंग ऑफ रीड. ठीक है, हम उसमें क्या कर रहे हैं कि सिर्फ रीड कर रहे हैं जो भी जीनोम्स प्रेजेंट हैं इन द वर्ल्ड, उसको रीड कर रहे हैं हम. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. तो दिस वॉज बीन डन बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, एंड US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, इट वॉज इन टू एक्शन फॉर 13 years एंड इट केम टू completion in 2003. ठीक है, बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट इंडिया
was not a part of this particular project. इंडिया वॉज नॉट अ पार्ट, इंडिया इसका पार्ट नहीं था. फिर क्या हुआ कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था 1990s का, इसका एक न्यू वर्जन आया. ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉलो अप प्रोग्राम ऑफ दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990s. उसका जो फॉलो अप वर्जन या फिर एक न्यू वर्जन जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम क्या था, एनकोड प्रोजेक्ट. ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वर्जन 2.0. एंड दिस वॉज राइट. अब राइट में क्या कर रहे थे हम, वी वर एक्चुअली मेकिंग अ सिंथेटिक और लेबोरेटराइज मतलब लेबोरेटरी में बना रहे थे सिंथेटिक और लेबोरेटराइज्ड वर्जन ऑफ जीनोम. ठीक है, तो अभी तक तो हम क्या है कि जीनोम की सीक्वेंसिंग कर रहे थे, उसका डेटा सेट बना रहे थे, बट नाउ वी आर एक्चुअली मेकिंग अ सिंथेटिक और लेबोरेटराइज्ड वर्जन ऑफ जीनोम इन लेबोरेटरीज. ठीक है, अब एनकोड का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, एनकोड का फुल फॉर्म है हमारे पास, एनकोड का फुल फॉर्म सिंपल सा है, दैट इज़ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डीएनए एलिमेंट्स, इसका यहाँ पर फुल फॉर्म है. ठीक है, और इसमें वी आर ट्राइंग टू फॉर्म अ लेबोरेटराइज वर्जन ऑफ जीनोम. और इसमें क्या है कि वी आर ऑल्सो विल बी इंटरप्रिटेटिंग द वेरियस genome sequences which we have already done in the past this read initiative. ठीक है, तो ये हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग की ब्रीफ टाइमलाइन थी जो इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें चल रही हैं. अब उसकी बात करते हैं अदर इनिशिएटिव्स जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली में लिए हैं, विच कैन बी आस्क्ड इन एज करंट अफेयर्स, दैट इज़ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. ठीक है, अब जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है कि किसने स्टार्ट किया है, बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इसका एम क्या है, द एम इज़ टू स्कैन अराउंड 20,000 इंडियन जीनोम्स over the period of next 5 years. 5 साल तक, अगले 5 साल तक there is a target to scan around 20,000 Indian genomes in a two-phase exercise है ये. ठीक है, 20,000 that is DNA samples of Indians. इसमें DNA samples लेंगे किसके, Indians के, and these DNA samples will be acting as reference genome. ठीक है, for future use. ठीक है, एम पर्पस क्या है, टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक ओरिजिन ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. ठीक है, और उनके साथ कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं. भाई सिंपल सी बात है ना कि कोविड है, अब कोविड-19 है, कोविड-19 के अंदर क्या है कि ये देखा गया है कि ब्राज़ील के अंदर बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं. ठीक है, ब्राज़ील के अंदर डेथ्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑल्दो केसेस इंडिया के सिमिलर हैं. इंडिया के अंदर क्या है कि डेथ रेट क्या है कि कम है. ठीक है, इंडिया के अंदर भी क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर क्या है कि देर इज़ मोर प्रिवलेंस ऑफ कोविड-19, हाउएवर इट इज़ लेस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री. तो ऐसा वेरिएबिलिटी क्यों आ रही है, तो वेरिएबिलिटी को ही देखने के लिए, ऐसे ही यूजेस को देखने के लिए देर वॉज अ रीज़न कि इट स्टार्टेड जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. इन दिस वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक ओरिजिन ऑफ दीज डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड देयरफॉर वी कैन ऑल्सो बेटर अप्रिशिएट द वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो उनको होते हैं. ठीक है, तो अब क्या होगा, दिस विल हेल्प अस टू डू वॉट, दिस विल हेल्प अस इन गोइंग टूवर्ड्स द प्रिसिशन मेडिसिन फील्ड. मतलब जब हम क्या है कि इन पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स के जीन्स का सीक्वेंसिंग कर लेंगे अंडर दिस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, देयरफॉर हमें पता लगेगा कि अच्छा इस जीन का, इन जो पर्टिकुलर सीक्वेंस हैं, जो एथनिक ग्रुप 1 है उनके जीन्स का क्या है पर्टिकुलर ट्रेट है. ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए पर्टिकुलर टाइप की मेडिसिन, ठीक है, इज़ मोर यूजफुल. देयरफॉर प्रिसिशन मेडिसिन फील्ड क्या है कि विल बी एमर्ज्ड. तो ये इसका बेसिक सा आउटपुट है. जो सेकंड है हमारे पास, दैट इज़ अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट. अब अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, एम क्या है इसका, एम इज़ रीडिंग डीएनए कंटेंट इन ईच, रिमेंबर, ईच of the world's known animals, plants and fungal specimens over next 10 years. ठीक है, तो इसमें क्या है कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं एंड फंगल स्पेसिमन्स हैं. ठीक है, दैट इज़ बेसिकली वी आर टारगेटिंग व्हाट, यूकैरियोट्स. ठीक है, यूकैरियोट्स को हम टारगेट कर रहे हैं इसमें. ठीक है, अब क्या होगा, इनके जो भी फिजिकल सैम्पल्स होंगे, दीज फिजिकल सैम्पल्स विल बी स्टोर्ड इन अ क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक with the help of cryopreservation technique, which is, we all know that it uses liquid N2
एंड द टेम्परेचर करेक्टरिस्टिक्स आर बियॉन्ड -150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमें सब पता है। देयरफॉर अब क्या होगा कि इनको क्या है कि जो भी हमारे पास डेटाज होंगे इनको क्या है कि वी विल बी स्टोरिंग एट मल्टीपल लोकेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, अगेन दिस विल हेल्प अस इन व्हाट, दिस विल हेल्प अस इन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, एज वेल एज इन सपोर्टिंग व्हाट, सपोर्टिंग एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन इनिशिएटिव्स। ठीक है, कि हम इससे पता लगा सकेंगे कि भैया पर्टिकुलर जो टाइप और कैटेगरी है किसका, हमारे पास एनिमल का फ्लोरा या फौना हो गया या फिर फंगल स्पीसीज़ हो गई, उनकी क्या है कि डिके डेथ क्यों हो रही है उसका पता लगा सकते हैं। एट द सेम टाइम जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स हैं उसको हम क्या है कि और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को इन प्लांट्स एनिमल्स और फंगल जिनको क्या है कि प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको भी क्या है कि देख सकते हैं एज पर दिस डेटाबेस ऑफ जीनोम्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है इसके बाद, दिस वॉज ऑल्सो इन न्यूज़ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इंडीजेन प्रोग्राम। अब इंडीजेन प्रोग्राम क्या था, इट वॉज स्टार्टेड बाय CSIR, दैट इज़ काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका कौन सा विंग ने स्टार्ट किया था इसको, CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनॉमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। एट द सेम टाइम देयर वॉज सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। एम क्या था, द एम वॉज टू अंडरटेक whole genome whole genome sequencing of roughly around 1000 Indian individuals representative diverse ethnic groups। ठीक है, diverse ethnic groups which are there in the diverse pockets of the country। हो सकता है इसमें से कुछ क्या है कि माउंटेन एरियाज़ के लिए हों, हो सकता है कुछ इसमें प्लेन एरियाज़ के लिए हो सकता है इसमें से कुछ कोस्टल एरियाज़ के लिए हों। द रीज़न इज़ कि पर्टिकुलर पॉकेट्स के अंदर, ठीक है, देयर इज़ जेनेटिक म्यूटेशन इन पर्टिकुलर पॉकेट्स के अंदर हो क्या रहा है, जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है। जेनेटिक म्यूटेशन के चक्कर में क्या है कि देयर इज़ चेंजेस इन जीन, कहीं जीन 1 मिल रहे हैं, कहीं जीन 2 मिल रहे हैं, कहीं जीन 3 मिल रहे हैं, कहीं जीन 4 मिल रहे हैं अलग अलग पॉपुलेशंस के अंदर। अब जब ऐसे मिल रहे हैं तो हम क्या है कि अगर इनको सीक्वेंस कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अच्छा कि स्पेस के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर जगह के अंदर ऐसे जीन हैं तो वहाँ पर बीमारियों का लेवल ये है, यहाँ पर इस तरीके के जीन मिल रहे हैं ज़्यादा तो वहाँ पर क्या है कि बीमारियों का लेवल ज़्यादा है, यहाँ पर इस अलग टाइप का जीन मिल रहा है तो यहाँ पर क्या है कि जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत ही अच्छे और हाई फ्रिक्वेंसी के हो रहे हैं, तो हमको क्या है कि सब डेटाबेस का पता लग जाएगा। सो दिस प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन द स्पैन ऑफ 6 months ओनली। और इसका जो रिजल्ट है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रफली अराउंड 32% ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस इन इंडियन जीनोम सीक्वेंसेस आर यूनिक। ठीक है, जो जेनेटिक लेवल पे वेरिएशंस हुए हैं ड्यू टू म्यूटेशंस, ठीक है, जो जेनेटिक लेवल पे चेंजेस हुए हैं ड्यू टू म्यूटेशंस, ठीक है, ये क्या है, आर यूनिक हैं, सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द ग्लोबल जीनोम। जब ग्लोबल जीनोम को कंपेयर करते हैं तो उसमें से रफली 32% क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन हमें दिखता है जीनोम सीक्वेंसेस के अंदर, विच इज़ यूनिक टू इंडिया ओनली। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इंडीजेन हो गया हमारे पास। अब अगर इसके बाद हम और बात करें तो देयर अदर आस्पेक्ट्स लाइक देयर इज़ 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट। ठीक है, अब 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट क्या है, दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ बीन इन टू कंसिडरेशन। ठीक है, अगर एक और की बात करूँ तो मैं, देयर इज़ समथिंग अदर देन दिस, दैट इज़ 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट का सबसे खास बात क्या थी कि दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय नामयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर प्लस साइंटिस्ट फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, एक तो ये है मेन यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व, दैट इज़ नामयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर प्लस मल्टीपल साइंटिफिक फ्रेटर्निटी फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया से भी साइंटिफिक कम्युनिटीज इन्वॉल्व इनटू दिस इनिशिएटिव, दैट इज़ 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके हाईलाइट्स क्या हैं। ठीक है, इट विल ऑल्सो सीक्वेंस द होल जीनोम्स ऑफ 11 लाख एशियंस। इसमें 11 लाख एशियंस का क्या है कि जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। ठीक है, और इस 11 लाख एशियंस के अंदर अराउंड 50,000 आर फ्रॉम इंडिया। मतलब एशिया के अंदर सारे टोटल 11 लाख हैं और 11 लाख में से क्या है 50,000 इंडिया के हैं। ठीक है, अगेन जो रीज़न है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अगेन टू डू प्रिसीजन मेडिसिन डेवलपमेंट्स एंड एडवांसमेंट्स। ठीक है, प्रिसीजन मेडिसिन कैसे पता लग जाएगी, जैसे ही हमें पता लग जाएगा रिलेशनशिप क्या, होस्ट और पैथोजन। ठीक है, होस्ट और पैथोजन की रिलेशनशिप जैसे ही हम अच्छे से पहचान लग जाएंगे आफ्टर
a good database from genome sequencing, then we can enter into this field of precision medicine. ठीक है. Also it will help us in deepening our understanding of diseases in the context of different ethnic diversities. ठीक है. अब एशिया के अंदर कितनी सारी रेसेस रहती हैं, मोंगोलाइड्स हो गया, कॉकोसाइड्स हो गया, तो उनके लिए क्या है कि हम देख पाएंगे कैसे उनको डिजीज़ इम्पैक्ट करती हैं एज़ पर देयर जीनोम सिक्वेंसिंग, किस तरीके से जेनेटिक वेरिएशंस हैं उनके और किस तरीके से उनको डिजीज़ हार्म कर सकती हैं. ठीक है. तो दिस इज़ दिस प्रोजेक्ट. ठीक है. तो अगर ऑल इन ऑल अगर एप्लीकेशंस की बात करनी हो, या फिर इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ DNA सीक्वेंस, जीनोम सीक्वेंसिंग, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. एप्लीकेशंस कैन बी इन हेल्थ, एप्लीकेशंस कैन बी इन मेडिसिन, एप्लीकेशंस कैन बी इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशंस कैन बी इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है. एट द सेम टाइम it will help us in early detection and intervention in diseases. ठीक है. it will help us to do what, to grow disease and drought resistant what plants. ठीक है. to breed disease and drought resistant what animals. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हेल्प करने में हमें मदद करेगा. सिमिलरली अगर इसकी बात करूँ तो using this genome sequencing only, the government of India has started 2 projects for agriculture, crops and animals. ठीक है. तो एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर गवर्नमेंट स्टार्टेड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कॉल्ड बायोटेक किसान. ठीक है. विच इज़ यूजिंग नथिंग बट दिस टेक्निक ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग ओनली. ठीक है. ये एग्रीकल्चर में हो गया. और अगर एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स के अंदर देयर इज़ ऑल्सो अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज़ on specifically on cattles, and that is called as cattle genomics. That is called as cattle genomics. ठीक है. and both these initiative, that is biotech kisan and cattle genomics, are being run under the Ministry of Science and Technology. ठीक है. तो दिस इज़ important with respect to biotechnology. अब जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, नेक्स्ट सेशन में what we'll be doing is we'll be taking some of the important डिजीज़ इन न्यूज़. ठीक है. वेल स्टार्टिंग फ्रॉम कोविड में भी देखेंगे किस तरीके से जेनेटिक सीक्वेंसिंग या जो DNA प्रोफाइलिंग है हेल्प करती है फॉर बेटर एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन्स टूवर्ड्स द इन्फेक्टेड पर्सन एंड एक्सेट्रा. ठीक है. और कैसे म्यूटेशंस हुए हैं और कैसे म्यूटेशंस का पता लगा विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक सीक्वेंसिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग, तो उसको हम देखेंगे. और वी विल लुकिंग एट अदर डिजीज़ इन न्यूज़ विच आर अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इन द आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक. So thank you and have a nice day.